चलिए, तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा स्क्वायर minus 2 tan square theta. So let us see this question. Wait. So integration of theta square minus 2 tan square theta. So what we can do first, we can separately integrate. We will try to integrate them separately. So we can write theta square d theta, integration of theta square d theta minus 2 times integration of tan square theta d theta. Now we can integrate this one theta square d theta with this power rule, that is the x raised to power n dx is equals to x raised to power n plus 1 upon n plus 1, right? So this will be theta cube upon 3, right? And you can write plus c here also, and if you may write the whole integration constant as c at the end also. But okay, let us do step by step for few questions, then we will write directly at the end. And this 2 and then integration of. Now we don't know the integration of tan square theta. You don't know any such function. We don't know any such function whose differentiation will give you tan square theta. You don't know such any function directly, right? So we cannot integrate tan square theta directly. So we will try to convert it into some suitable integrable form. So for example, we have an identity like sec square theta minus tan square theta is equals to 1. So from here we can write tan square theta is equals to sec square theta minus 1. So we can write tan square theta as sec square theta minus 1 d theta. Now, again, we can integrate them separately. So this should be theta cube upon 3 plus c as it is, just copying. And this will be minus 2 bracket integration of sec square theta d theta minus integration of d theta, bracket closed. Now you can integrate. This is already integrated. Just write theta q upon 3 plus c minus 2. Now integration of sec square theta. You know that d upon dx of tan of x, dy dx tan x is sec square x. It means the integration of sec square x will give you the tan x. So now this is the integrable form. So it can be written as tan square theta minus this integration of d theta will be the theta. So now this is your answers, and obviously another integration constant like k. So we can write theta cube upon 3 minus 2 tan square theta minus 2 theta plus वैसे c. आपने ये स्टेप के बाद क्या किया? Sorry, this will be the plus 3. सेकंड स्टेप के बाद किस स्टेप के बाद? ये जो सेकंड लाइन है। यहाँ ये सेकंड लाइन, इसके बाद हाँ। कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो, ये फिर से अलग अलग इसको हमने u प्लस वी या u माइनस अलग अलग कर दिया। सेक स्क्वायर डी थीटा को अलग इंटीग्रेट किया और 1 इंटू डी थीटा को अलग इंटीग्रेट किया। यहाँ पे ये 1 इंटू डी थीटा लिखा हुआ है, राइट? यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1 डी थीटा, जो कि डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा। उसके बाद ये हो गया, और ये प्लस सी और ये प्लस के मिलके एक अनदर कांस्टेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ओवरऑल। सो हम लोग लिख सकते हैं थीटा क्यू अपॉन 3 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 थीटा प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा। और डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग सी लिख सकते हैं लास्ट अगले क्वेश्चन से। ये हर स्टेप में इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे शो नहीं करेंगे। वी विल राइट फाइनल इंटीग्रेशन कांस्टेंट एट द एंड ओनली। बट अगर इंडिविजुअली आप करोगे तो ऐसे सी लैम्डा या C1 C2 C3, लास्ट में C1 प्लस C2 प्लस C3 को हम सी लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं।
सर ये tan स्क्वायर थीटा माइनस थीटा कहाँ से आया? हाँ, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, ये हमको निकालना था। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमने यहाँ पे सोचा क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर बनता है। क्या कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हमने रिकॉल किया कि भाई हाँ, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसका मतलब कि अगर हम सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करें तो हमें tan x मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा तो आपने tan tan स्क्वायर, स्क्वायर क्यों और लिखा? सॉरी सॉरी, tan स्क्वायर नहीं भैया, यहाँ पे tan, सॉरी, इट शुड बी द tan थीटा, या सो और टू। ये d थीटा का ये डी माइनस थीटा थीटा हो का गया। थीटा, हाँ डी थीटा का थीटा हो गया। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था, dx का इंटीग्रेशन करेंगे। dx मतलब क्या, स्मॉल पार्ट ऑफ x, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा x मिलेगा। dy मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ y को अगर मैं एड अप करूंगा तो पूरा y मिलेगा। उसी तरह से हम्म। डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा मिलेगा। और पूछो डाउट। हाँ नहीं बस। वेरी गुड। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये आ गया थीटा क्यू अपॉन 3 प्लस 2 थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस सी। वेरी गुड। चलो, अब ये क्वेश्चन है, देखिए, दिस इज एग्जांपल नंबर 4। व्हाट इट इज सेइंग, we have given that dy upon dx is equals to this, right? Now find y given that the graph of the function passed through the point 1 comma 0। देखो, ये अपने आप में कहा जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो, जो कि आपको इसके बाद पढ़ना है। डिफरेंशियल, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज एन इक्वेशन, क्या है, इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज होंगे, मतलब dy अपॉन dx का इन्वॉल्वमेंट होगा। राइट नाउ आपको दिख रहा है कि हाँ, एक इक्वेशन है जिसमें मुझे dy अपॉन dx दिया हुआ है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करना या सॉल्यूशन निकालना, कहने का मतलब उस y को निकालना जिसके लिए ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो भी इक्वेशन दिया हुआ सेटिस्फाई करे। वो y क्या है जो जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इनडायरेक्टली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का भी थोड़ा कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ। ये फंडामेंटल डिफरेंशियल कंसेप्ट यही है। क्या आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और आपको y निकालना है। y निकालना है मतलब इंटीग्रेट करना है। देखो कैसे, सो वी हैव dy अपॉन dx is equals to 1 minus x square whole square. So we have to integrate them. So if you shift this dx to other side, you can write dy is equals to 1 minus x square whole square into dx. Now we can integrate. So integrating both side. Now I am integrating both sides. So see, this integration of dy will give you y, and in right hand side now we have to integrate this with respect to dx. So do you think that you can apply here the chain rule of integration? No, there is no such rule in case of integration, right? There is no such rule of chain integration, right? So what we can do, we can either expand this, right? So do you know a plus b plus c whole square? Do you know this identity? It is a square plus b square plus c square plus twice of ab plus twice of bc plus twice of ac, B, right? So you yeah. can write in this manner, a square plus b square plus c square plus twice a b. See, b is basically minus x plus twice b c plus twice of a into c. This into dx. So it will be y is equals to integration of 1 plus x square plus x raised to power 4 minus twice of x minus twice of x. Sorry, this is the plus
twice of x cubed minus twice of x squared dx. Is it okay? Now you can integrate. Please see, all are in integrable form. You can easily integrate them. So y should be equals to x. See, now I'm integrating in each and individual term. So integration of one will be x, isn't it? Are you getting? See, integration of 1 into dx, that is the dx. So integration of dx will be x. X square will be x cube upon 3 plus this will be x raised to power 5 upon 5 minus 2x square upon 2 plus 2x raised to power 4 upon 4 minus 2x cube upon 3 plus c. See, this and this can be simplified also. I have not seen initially. Otherwise, I will adjust them at the initial stage. No problem. So now to find this c also, either you can simplify it first. So it should be x minus 2x. See, this 2 and 2 can be cancelled out. So let us write in simplest form. So x minus x squared. Now I'm writing x cube terms. So see, now we have to adjust this x2 plus x3 upon 3 and this minus 2x3 upon 3. So overall we will get minus x cube upon 3. This will be cancelled out. So this will be x raised to power 4 upon 2 plus x raised to power 5 upon 5 plus c. Now, to get this c, you have one more information that this curve is passing through 1 comma 0. So it means this will satisfy this point 1 comma 0. If you put y value is equals to 0, x value is equals to 1, so 1 minus 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1 by 5 plus c. So from here you can find your c. In this manner, you can get your y exactly. Is it okay? Yeah. चलो इसका इमेज या पिक्चर जो लेना है ले लो. बुक में भी देखो अच्छा ऐसे ही मैंने किया हो. ठीक ठीक हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा है इसका भी है ना, बड़ा गंदा सा आ रहा है सी की वैल्यू. ठीक है, लिख लिए. या चलो बहुत बढ़िया, शाबाश. अब देखो हम लोग सीखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन से एक चीज तो क्लियर हो गया. क्या? कि इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगता है ना. ये मत सोचना कि अगर स्क्वायर का पता है तो अंदर कुछ भी कर लोगे. हाँ, जो हाँ थोड़ा बहुत हमारे पास रूल्स है वो देखो, जैसे कि ये पहले इसको समझते हैं. पहले इसको लेट अस अंडरस्टैंड विद एन क्वेश्चन. अगर आपको sin x का इंटीग्रेशन पता है क्या? डू यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ sin x? दैट इज अ cos x प्लस c, हाँ राइट. अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा ठीक है, क्या आपको sin 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन पता है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर sin x का इंटीग्रेशन cos x है तो sin 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2x squared over 2. आपने सबको इंटीग्रेट कर दिया ना. हाँ देख, अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है. फिर आप, मतलब सॉल्यूशन नहीं, पहले इसके स्टेप्स को समझो, फिर हम इसको समझेंगे. अच्छा, मैंने आपने क्या सोचा सर, मुझे sin x का इंटीग्रेशन तो पता है, cos x ये जो ये टर्म आ गया ना सर, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है. अगर ये यहाँ पे एक टर्म होता ना, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं sin t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या ये आपके लिए प्रॉब्लम है? sin t dt का इंटीग्रेशन क्विक, जल्दी. cos ये तो t. cos t प्लस ये प्रॉब्लम नहीं है, है ना. ये हमारे लिए हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x के पे t है, पैटर्न सेम था, हमने लिख दिया. वही कह रहे हो कि वही सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे ये ना 2h प्लस 3 ने सारा काम मेरा बिगाड़ दिया है. अगर इसके जगह पे कोई एक वेरिएबल होता तो मेरा काम हो जाता. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मान लो. पूरे मैथमेटिक्स में एडजस्टमेंट ही सिखाता हूं मैं, ये तो आपने देखा होगा. आपकी जीसीएससी लेवल से आई थिंक आपको सिखा रहा हूं, है ना. मैथ एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्टमेंट है. तो ये हमने मान लिया जेड है, ठीक है. अब हमको dx की भी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखो पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ साइड. पार्शियली डिफरेंशिएटिंग
both side. What is the meaning of partial differentiation? Meaning of partial differentiation is you are differentiating without any respect. मतलब हम किसी के respect में नहीं कर रहे हैं, dy upon dx नहीं कर रहे हैं, केवल dy कर रहे हैं. तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो मल्टी कांस्टेंट में रहेगा और x का डिफरेंशिएशन dx प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 और z का डिफरेंशिएशन dz. आई बात समझ में? दिस इज ठीक है। कॉल्ड पार्शियल. अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो फिर आप जेड के रेस्पेक्ट में कर लो या एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो, है ना. तो यहां से हमारे पास आ गया 2 dx इज इक्वल्स टू dz. तो यहां से आप dx को सब्जेक्ट बनाओ. dx को सब्जेक्ट बनाया तो क्या आ गया dz बाई 2. यहां तक क्लियर है? अब अच्छा। आपके पास वो दोनों सब्स्टिट्यूशन पता है जिसके हेल्प से मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. जैसे कि जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा एज ए जेड, समझना कंसेप्ट है यहाँ पे. अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा एज ए जेड और मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूं साइन ऑफ जेड और यहाँ पे लिखता हूं dx, तो ये क्वेश्चन ही मीनिंगलेस है. अगर आपका वेरिएबल जेड है अब, तो dx के टर्म में कैसे इंटीग्रेट होगा? हो ही नहीं पाएगा. ये क्वेश्चन ही मीनिंगलेस हो जाता है फिर. अगर आपका यहाँ पे जेड वेरिएबल हो गया तो x के टर्म में आप इंटीग्रेट या dx के टर्म में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा. तो यहाँ हमको dz का टर्म चाहिए. आ रही बात समझ में? इसीलिए हमने यहाँ पे ये dx का एक्सप्रेशन निकाला है. देखो dx इक्वल टू क्या हो गया है dz बाई टू. तब आप लिखोगे यहाँ पे dz बाई टू. ये 1/2 तो हम एज ए मल्टीप्लायर बाहर में निकाल सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है. और इंटीग्रेशन क्या बन गया साइन जेड dz. इज इट ओके? हम्म। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? इसका इंटीग्रेशन क्या आपको नहीं पता है? क्या होगा कॉस कॉस। ऑफ जेड प्लस सी. वापस से जेड की वैल्यू पुट कर दो. जो आपने माना था, जेड तो हमने माना था ना, हमारे क्वेश्चन तो एक्स के टर्म में था, तो हम उसको वापस से जेड के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हाफ ऑफ 2x प्लस 3 प्लस सी. सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. पहले ये बताओ इस स्टेप में कोई समझने में दिक्कत है? फिर से कंक्लूजन की बात करते हैं. नहीं, ठीक नहीं. है मेरे ख्याल से। देखो आपको ये भी समझाया प्रॉब्लम क्या है, आपको ये भी समझाया कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे है. सॉल्यूशन वही था कि आपने सोचा था कि यहाँ पे एक वेरिएबल होता तो मेरा काम हो जाता. वही किया हमने, एक वेरिएबल माना और उससे आपने सब्स्टिट्यूट करके और कर लिया. अब कंक्लूजन की बात करते हैं. तो देखो ओवरऑल क्या हुआ, साइन का जो इंटीग्रेशन था कॉस, फंक्शन तो वही आया, यहां जो भी लिखा हुआ था ये भी वो हुआ. लेकिन जो यहाँ पे x का मल्टीप्लायर था क्या था 2, वो यहाँ पे डिवीजन में आता है. इट इज जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में देखोगे हमेशा जो मल्टीप्लायर जो होता है वो बाहर में आता है एज ए मल्टीप्लीकेशन, है ना. कॉफिशिएंट जो होता है हमेशा मल्टीप्लीकेशन में आता है. यहाँ पे इंटीग्रेशन में जो उसका कॉफिशिएंट था वो डिवीजन में आ गया है. अब इसको अगर मैं एक रूल के अकॉर्डिंग लिखूं, अब मैं इस स्टेटमेंट को अगर मैं एक रूल के अकॉर्डिंग लिखूं तो देखो कैसे लिखूंगा. मैं लिखूंगा कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस सी. अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स जो होगा ये हो जाएगा 1/a g ऑफ ax प्लस बी प्लस सी. तो क्या क्या हमने फर्क किया? दिस इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इसको आप कैसे समझोगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि हमने x को लीनियरली ट्रांसफॉर्म किया. ax प्लस बी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन x. क्वाड्रेटिक के लिए ऐसा नहीं होगा, क्यूबिक के लिए नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल के लिए नहीं होगा, लॉगरिथमिक के लिए नहीं होगा, है ना, स्क्वायर रूट के लिए नहीं होगा. किसके लिए होगा? केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अगर आपने एक्स को लीनियरली चेंज किया है, लीनियरली ट्रांसफॉर्म किया है, तो आप ये करोगे, क्या करोगे, एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो इस तरह से डिवीजन में चला जाएगा और जो भी आपका रूल फंक्शन था जी, जी और जो भी एक्स था एक्स प्लस बी वो सब एज इट इज रहेगा, बस ये बाहर आ जाएगा. कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। लिखो इसको. ठीक है नहीं सर लिखो, नोटबुक में लिखो. आपके नोट्स अच्छे नहीं रहते हैं इसलिए एक ही चीज को 2-3 बार बताना पड़ता है फिर.
हाँ सर लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन करो फिर। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x/2 प्लस 7/3 dx। सोचो क्या ये रूल लगेगा? अगर लगेगा तो कैसे लगेगा? सर तो क्या इसमें इसमें 2 बाहर आएगा क्या? 2 बाहर आएगा या 1/2 बाहर आएगा, मतलब आप सही नहीं, कह रहे हो क्योंकि लेकिन। 1 ओवर ए होता है ना, तो हाँ ये 1 बिल्कुल 1 बाई बिल्कुल, हो यहाँ जाएगा। पे 2 बन जाएगा वो, आप सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। पूरा फाइनल आंसर बोलो। फाइनल आंसर बोलिए। सेक स्क्वायर इंटीग्रेट होके tan होता है, शाबाश, तो बिल्कुल। 2 tan, हम्म। फिर ये सीधा पूरा चीज लिखना है x/2 प्लस बिल्कुल 7/3। बिल्कुल सही हो गया। सही हो गया आपका। इसका मतलब अब आप परफेक्टली सीख चुके हो। दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रूल। चलो अब हम अपने बुक के कंटेंट को देखें। देखो ये रूल हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, है ना। जैसे ये कहता है इंटीग्रेट करो 2x प्लस 3 रेज टू पावर n रेज टू पावर 3 dx। तो क्या मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं? यस। आप ऐसे सोचो, क्या आप x के पावर 3 का इंटीग्रेशन जानते थे? क्या आप x के पावर 3 का इंटीग्रेशन जानते थे? बिल्कुल जानता था। मैं जानता था x के पावर 4/4 प्लस c होता है। लेकिन अब मेरे पास ट्वाइस ऑफ x प्लस 3 के पावर क्यूब है। तो भैया x को क्या किया है आपने? लीनियरली ही तो चेंज किया है। एक्स हम्म। में लीनियर ही तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो यस, यहां भी ये रूल लगेगा। तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 अपॉन 4। और ये जो 2 है ना, ये 1/2 यहां भी आएगा ऐसे। आई बात समझ में? देखो ये हो गया ना ये चीज, तो आएगा ही आएगा, और ये 1/a भी इसमें बाहर आएगा। 1/2 बाहर क्यों आया? तो बाहर कहाँ आएगा? ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 2। तो 1/a नहीं करोगे? ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे बताओ, कोई डाउट है? नहीं, मैं लिख रहा हूँ इसी में। और ये वाला तो अभी अभी आपने किया। इस पे बेस्ड तो अभी अभी आपने एक क्वेश्चन कंप्लीटली सही किया है। हाँ, लिखो। ये चारों लिख लूँ? अच्छा, सेम ही है। 4 है, मतलब लिख लो तो ज्यादा बेटर है। एक बार रिकॉल भी हो जाएगा ना सब कुछ कि हाँ अच्छा कि। लिख। आप ऐसा करो ना, आप आरएचएस मत देखो। आप आरएचएस मत देखो, आप एलएचएस लिखो सबका। और आरएचएस सोच के लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा अगर लिख पाओ तो। ठीक एक सेकंड। है?
हाँ। चलिए, अगर आप इस रूल को समझ चुके हैं तो एग्जाम्पल नंबर 5 के 3 क्वेश्चंस आप सही सही करके बताओ मुझे, है ना। डायरेक्ट भी आप आंसर बता सकते हो चाहो तो। मुझे इंटीग्रेट करना है, मैं पूरे फॉर्मेट में लिख देता हूं, दिस dx एंड दिस dx। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं यार, अलग अलग ही कर ले, अच्छा नहीं लग रहा है इससे। फर्स्ट क्वेश्चन ए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 रेज टू पावर 8 dx। चाहो तो आप एक लाइन में आंसर बता सकते और तो इसका होगा 8 ब्रैकेट 3x माइनस 4 हो। क्या क्या टू द क्या, पावर। फिर से क्या? फिर से बोलो एक बार। 8। नहीं सॉरी, 8 नहीं, 3x माइनस 4 टू द पावर ऑफ 9 हाँ, ओवर 3x 3 ब्रैकेट 9 और तो ये 3 27। भी नीचे आएगा, है ना। हाँ 27। प्लस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। 5 माइनस, इसमें गलती मत करना, एक रेड अलर्ट दे रहा हूं मैं, है ना। स्मार्टली देखना और सोचना, एक मौका ही दूंगा केवल, क्योंकि अलर्ट पहले ही दे दिया है मैंने। चलिए। उसमें 5 माइनस 2x हम्म ब्रैकेट टू द पावर ऑफ माइनस 5 हम्म ओवर हम्म माइनस 2 टाइम्स माइनस 5। शाबाश। अक्सर बच्चे यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, समझ में आया। तो हाँ वो हाँ। 2 बोल देते हैं, वो गलत हो जाता है, सी पार्ट। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सही सीख रहे हो। इंटीग्रेशन, और लेकिन फिर भी मैं स्टेप बाय स्टेप ही जाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बच्चों का खेल नहीं है, मतलब थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रखें, चलना भी समझदारी है। थोड़ी सी सावधानी घटी, दुर्घटना घटी। चलो। हम्म। अरे भैया, ये तो tan स्क्वायर आ गया, सोचो अब फिर। tan स्क्वायर। अच्छा, पहले आप सोच लो, फिर मैं आपको हिंट करना शुरू करूंगा, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन तो नहीं बताऊंगा। ये सर ये tan स्क्वायर का 1 माइनस, नहीं सॉरी sec स्क्वायर माइनस 1। हाँ, यही हिंट था, कि बेसिकली आप अपने पहले मेन फंक्शन को देखो, आप ऐसे सोचो। अरे यार, आप इसका टेंशन मत लो, आप इसका टेंशन मत लो, आप ऐसे सोचो। यार, मैं tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानता हूं या नहीं, मैं tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर पाऊंगा कि नहीं। अगर मैं tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो मैं tan स्क्वायर एक्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो मेन प्रॉब्लम ये है आपके लिए, और ये तो अभी अभी सिखाया मैंने, कि अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज करें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो हम tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। शाबाश। तो पहले तो हम इसको चेंज कर देते हैं फॉर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर, और x की जगह पे जो भी था 5x-1, ये एंगल में है, और ये फिर से एक -1, है ना। ये समझ लो, ये लिखने में गलती करनी। आगे क्या करें। हाँ जी। इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। फिर अ, फिर आप ये देखो कि क्या दोनों ही, इन दोनों ही जो टर्म्स आ रहे हैं, क्या दोनों इंटीग्रेबल फॉर्म है। देखो, आपको सोच मतलब करने से पहले सोचना है,
करने के बाद नहीं सोचना, इन्हें हमने बाइफरकेट कर दिया अलग अलग, और अब सोच रहे हैं इंटीग्रेशन होगा कि नहीं, तो फिर आपको वापस रिवर्ट बैक करने में दिक्कत होगी। तो आप बाइफरकेट करने से पहले सोचो कि क्या दोनों ही फॉर्म इंटीग्रेबल फॉर्म है, आप उनको इंटीग्रेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेबल फॉर्म है तो आप इसको अलग अलग कर लो और इंटीग्रेट कर लो, अगर लगता है इंटीग्रेबल नहीं है तो पहले सोचो कि भाई और अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले आप सोचिए, अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं तो क्या इंटीग्रेबल है दोनों। हाँ। है तो अलग अलग कर दो, खत्म क्वेश्चन। अगर नहीं है तो फिर आपको फिर वापस सोचना पड़ेगा। 5x-1, ये dx तो कॉमन है, सबके साथ लिखो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ऐसे लिखो। चलो आंसर बताओ अब। तो सेक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगी tan, और फिर हम्म tan ब्रैकेट 5x-1 हम्म ओवर 5, हम्म फिर और फिर 1 का डिफरेंट, ये x। माइनस एक्स, है ना, एक्स, हाँ। 1 into dx और dx का इंटीग्रेशन x, हम्म। और ये प्लस c, दैट्स ऑल, खत्म। सर फिर जैसे, अब, लेकिन यहाँ पर 5x-1 का पावर मतलब ऊपर 1 होगा ना, अरे तो भैया ये आप यहाँ डिफरेंशिएट देखो, होगी। हाँ हाँ, आप बताओ ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या बोलते हो आप। नहीं सर, सेक्स स्क्वायर का नहीं, 5x-1 का इस पूरी चीज का पावर 1 होगा ना, तो हमें इसको भी डिफरेंशिएट करके पावर नहीं ऊपर नहीं ऐड नहीं 1। नहीं, अरे वही तो समझा रहा हूँ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। यहाँ देखो, हाँ। अपने रूल पे आओ, इंटीग्रेशन बहुत रूल से चलता है ना। ये है, अगर मैं आपको यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया 2x+1, तो भैया आप केवल सेक स्क्वायर एक्स का तो ये हो ही जाएगा ना, ये तो tan 2x+1 बन जाएगा, ये तो tan 2x+1 बन जाएगा। और रूल क्या कहता है, जो x का यहाँ पे जो आपका कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। ये इसका पावर से क्या लेना देना है। अगर यहाँ पे पावर 2 हो गया तो फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा भी नहीं, ये तो समझ लो। फिर तो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा भी नहीं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर उसका पावर 2 होता फिर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फिर नहीं, इंटीग्रेट करते हैं। नहीं कर पाते ना, फिर आपको अल्टरनेटिव, अगर आपसे कोई ये पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, और यहाँ पे कह देता है 2x+1 स्क्वायर, है ना, हम्म। तो हम सब पता है कैसे करते हैं, ऐसे करते, सेक स्क्वायर और इसको पहले खोल लेते, ये एंगल में है ना, एंगल में लिख हाँ। लेते ए स्क्वायर, सुनो पहले, ए स्क्वायर +b² +2ab, है ना। और फिर हम रुक जाते, क्यों रुक जाते, भैया ऐसा कोई रूल नहीं है, हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, और हम उस x को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे। ये देखो तो, ये x हम्म। सेक स्क्वायर के x का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या ये। नहीं। नहीं, तो आप ये रूल नहीं कर सकते हो भैया, यहाँ पे इंटीग्रेबल नहीं है अभी, फिर इसको दूसरे मेथड से करना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, ठीक है। है ना। चलो हम्म। और क्वेश्चंस करते हैं, इसीलिए देखो आपको यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, और सीधे ब्लैक बोर्ड पे ले जाके करवा रहा हूँ। ऐसे कुछ आपको पीडीएफ में एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए एक्सप्लेनेशन पूरा प्रॉपर। एक्सरसाइज 7A, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का डी पार्ट करेंगे हम लोग, ई पार्ट सॉरी। क्योंकि देखो अब क्या है ना, आप एक हायर लेवल के मैथमेटिक्स में, मतलब जहां पे सब कुछ मिक्स हो रहा है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो मतलब काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है क्वेश्चन को घुमाने के, है ना। और आपको क्रैक करने के लिए सब कुछ सोचना पड़ेगा, तो मुझे कह रहा है फाइंड द इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, तो मैं ई पार्ट पे पहले फोकस कर रहा हूँ। इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है 2 टाइम sin x/2 इंटू cos x/, और ये हो गया dx। चलो सोचो आप।
लो जल्दी। अ, लिख रहा हूँ। तो इसमें ये सबको मतलब इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना है। ऐसा कोई रूल पढ़ाया है मैंने? ऐसा कोई रूल है आपके पास? इसलिए कहता हूँ रूल लिखो। मैंने आपको बताया है u प्लस माइनस वी को अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो इंडिविजुअली आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई रूल दिया है आपको अभी तक? देखो देखो, इसलिए कहते हैं रूल लिखना। सुनने और लिखने में बहुत फर्क है। अब यहाँ पे सब कुछ लिखा होना चाहिए, ये तो कंफ्यूजन हाँ होगा। सर, लिख तो रहा हूँ। हाँ, प्रोडक्ट के लिए कोई रूल है आपके पास अभी तक? नहीं। है ही नहीं, और होता भी नहीं है। प्रोडक्ट के लिए आगे जाके रूल पढ़ोगे। प्रोडक्ट के लिए, जिसको मैं एक नाम दे रहा हूं, आइलेट रूल। लेकिन अभी तो आपने वो भी नहीं पढ़ा, अभी तो अब यूज ही नहीं करना है ना। वो आइलेट रूल पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। आपको प्रोडक्ट रूल अभी आपको यूज नहीं करवा रहा हूं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रूल है। ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या है देखो, आपको वन डायमेंशन में नहीं सोचना। मतलब इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो केवल मैं इंटीग्रेशन सोचूंगा, गलत, गए, नहीं हो पाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको हर इंटीग्रेट कर रहे हो ना, हर चीज आपके दिमाग में साथ साथ चलना चाहिए। भैया ये कोई आइडेंटिटी है क्या? किसी आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ लग रहा है? लिंक बनाओ। अब ये इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री देखते के साथ आपका दिमाग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ झुक जाना चाहिए था। अच्छा हाँ, ऐसा भी हो सकता था। है कोई आइडेंटिटी? फॉर्मूला बुक्स में देख के तो चेक कर सकता ये हूँ। बताओ। ऐसे तो चलो नहीं आ रही देखो, है। देखो देखो देखो। हो सकता है उससे भी लिंक बने ना बने, क्योंकि हर चीज नहीं दिया हुआ फॉर्मूला बुकलेट में। हाँ। फॉर्मूला बुकलेट का आप एक प्रिंट आउट निकालो, डिजिटल नहीं। प्रिंट आउट निकालिए और उसको देखिए, बार बार कह रहा हूं। उस देख देख के आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा भाई। फॉर्मूला बुकलेट देखने में भी टाइम वेस्ट होता है कई बार एग्जाम में। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप प्रिंट आउट निकाल के उसको मतलब यूज किया करो डे टू डे लाइफ में, क्लास में, तो याद हो जाएगा ऐसे भी। हाँ, मैं निकालता हूँ। हम्म। हाँ सर, ये साइन टू थीटा। ये लिखो से यहाँ पे, अब उसको लगाओ जरा, लगाइए। क्या लिखूं इसकी जगह पे? साइन टू एक्स बाय टू। हाँ, तो सीधा क्या हो गया? ये साइन एक्स बन गया, नहीं बन गया? हाँ इस समझ में आया नहीं? हाँ हाँ। आपको पता है साइन टू थीटा का जो आइडेंटिटी है वो है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और मैंने बताया था जब हम लोगों ने ये डिस्कस कर रहे थे कि इसका पैटर्न आपको समझना है। पैटर्न याद रखना है। क्या पैटर्न है? कि भैया जो भी एंगल है उसका आधा आधा एंगल हो जाता है ना। तो उस बेसिस पे अगर आप साइन थीटा को भी चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हो, लिख सकते हो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। याद आ रहा है? ये चीज आपको समझाई थी मैंने कि मल्टीपल एंगल में इस तरह से पैटर्न आप समझो। केवल ब्लाइंडली फॉर्मूला मत याद करो कि साइन टू थीटा यही हो गया। आप साइन फोर थीटा के लिए भी लगा सकते हो, साइन सिक्स थीटा के लिए भी लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? हाँ ठीक है। जैसे साइन सिक्स थीटा का अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा टू साइन थ्री थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा। क्लियर है? तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। अब बताओ, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर, ये साइन एक्स बाय टू नहीं होगा क्या? क्यों होगा? बताओ ना, बताओ बताओ। अरे आप अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, अभी तो आपने आइडेंटिटी लगाई है।
अभी तो आपने इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को यूज किया, अभी इंटीग्रेट थोड़ी कर रहे हैं हम। ओ अच्छा ठीक है हाँ। अभी इंटीग्रेट थोड़ी हुआ, अभी तो इंटीग्रेशन का साइन है ही। अभी तो आपने इस आइडेंटिटी को यूज किया है, देखो जरा। 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, अभी तो आपने इस आइडेंटिटी को यूज किया है ना? हम्म, तो बताओ, हाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो क्या आप? हम्म। साइन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते? नहीं सर कॉस। हाँ, तो हो गया ना आंसर, cos x प्लस सी। क्लियर? अब इस अच्छा बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, है ना? एक क्वेश्चन मैं देता हूं अपनी तरफ से एडिशनली। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 3 θ इंटू कॉस 2 भी हटाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। sin 3 θ इंटू cos 3 θ डी थीटा, इंटीग्रेशन। चलिए सोचिए। लिखते चलना एकदम अच्छे से सारे नोट्स। हम्म लिखिए what it should be। हम्म। इसमें वो आइडेंटिटी तो यूज कर नहीं सकते कौन सी आइडेंटिटी? जो पहले क्वेश्चन में करी थी। कौन सी आइडेंटिटी बताओ तो, एफ ऑफ एक्स प्लस साइन वी वाली? थीटा नहीं एफ साइन ऑफ थीटा। एक्स, ये वाला? हाँ क्यों नहीं कर सकते? बताओ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंदर यहाँ पर मतलब 2 से मल्टीप्लाई नहीं है। कोई बात नहीं, अब उल्टा लगाना है ना। यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर यहाँ से आप डायरेक्टली अच्छा, ये 2 नहीं है इसलिए कह रहे हो, ये 2 नहीं है इसलिए कह रहे हो? हाँ अरे, तो ये तो ये तो सिखाते आता हूँ आपको। कांस्टेंट तो क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है हाथ का? क्या सिखाता हूँ आपको? अच्छा क्या बाहर इसको बाहर ले सकते हैं। अरे नहीं 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 सिखाता हूँ आपको, एक डायलॉग, कांस्टेंट तो हाथ का मैल होता है, कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर लो। आपको 2 नहीं था ना, बस इसके लिए परेशान थे। लो भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, खुश? बताओ कोई दिक्कत? अच्छा करते हैं ना ऐसे एडजस्टमेंट, कांस्टेंट तो हाथ का मैल है, जहां मन वहां निकाल दो, जहां मन वहां डट करना है डटी कर लो, है ना? समझ में आया नहीं आया? ये डायलॉग क्यों बोल रहा हूं, हाँ हाँ ताकि हाँ याद रहे। एक बोला भी होगा कई बार पहले कि कांस्टेंट तो हाथ का मैल होता है, कहीं भी एडजस्ट कर लो। 2 नहीं था तो 2 क्रिएट कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया। आगे बहुत यूज पड़ेगा ये। एडजस्टमेंट का सबसे ज्यादा यूज आपको इंटीग्रेशन में ही करवाऊंगा, अगर आप क्विक समझना चाहते हो और क्विक सॉल्व करना चाहते हो तो। नहीं तो मेथड से जाओगे तो भैया ये मानो वो मानो, इधर करो उधर करो। और अगर आपको एडजस्टमेंट समझ में आता है तो
चुटकी का खेल है फिर ये, 1 मिनट का खेल हो जाए। अब करो तो ये हो जाएगा तो ये 1/। साइन 6 हो जाता है। हाँ, और इसकी जगह पे अब आप साइन 6 थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? हम्म अब बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का कॉस पूरा बोलो, कॉस फिर क्या, 6 थीटा लिखो ना। प्लस सी। बस हो गया, और कुछ? हो गया मेरे ख्याल से। ऐसे कैसे हो गया भैया? इसका इंटीग्रेशन जब करने जाओगे तो थीटा का मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है? 6। तो डिवाइड नहीं करोगे 6 से? ओह अच्छा। भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन हम्म थीटा डी थीटा अगर कॉस थीटा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं साइन 6 थीटा करूंगा, मान लो यहाँ पे ये वाला पार्ट जीरो है, 6 थीटा प्लस जीरो लिखा हुआ है, जो आप उस तरह से देखने का आदत है ए एक्स प्लस बी में, तो बी वैल्यू जीरो है, ए तो है ना, ए तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाँ हाँ कॉस 6 थीटा डिवाइडेड बाई 6 नहीं होना चाहिए? आए बात समझ में? हाँ ठीक है। लिखो पहले, अगर लिखे। इसीलिए फिर कह रहा हूं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बाय हार्ट याद करो, इंटीग्रेशन के जितने कंसेप्ट बताए जा रहे हैं बाय हार्ट याद करो। अब यहाँ पे आपको क्विक गियर चेंज कर देख लो, कहाँ इंटीग्रेशन में कहाँ ट्रिग्नोमेट्री में गए, फिर इंटीग्रेशन में भी लिंक हो गया तुरंत। हम्म। लिख लिया? हाँ चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वैसे क्वेश्चन जो आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो। चलो स्ट्रगल तो नहीं करोगे, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, इजी इजी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सेकंड का डी पार्ट करो। सेकंड का डी पार्ट, इंटीग्रेट ट्वाइस ऑफ 2 - x रेज टू पावर 3 dx। चलो बताओ। इसका 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 ओवर 4 टाइम्स -1। क्या है? बहुत बढ़िया। एक बार ई पार्ट करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस कॉस एक्स माइनस 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डैश dx। ट्राई करो। सर इसमें वो प्लस माइनस वाला रूल लगा सकते हैं ना, तो इंडिविजुअली। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। बताइए, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, हम्म फिर cos x का इंटीग्रेशन साइन। माइनस ऑफ साइन x, फॉर्मूला नहीं लिखा है। हाँ फिर हाँ माइनस 1 ओवर cos स्क्वायर x को इंटीग्रेट कैसे करें? 1 ओवर कॉस स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर cos स्क्वायर x, हाँ यही है ना? कैसे हम्म करें? सर सेक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 ओवर कॉस स्क्वायर्ड। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा हाथ पैर चलाना है, मतलब आपको किसी भी तरीके से इंटीग्रेबल फॉर्म में देखना है। मतलब थोड़ा हाथ पैर चलाओ, एडजस्ट करो, कुछ करो, लेकिन इंटीग्रेबल फॉर्म में आओ भाई।
तो है ना, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, ये माइनस तो हाँ है ही जी, है, और मैं लिखता हूँ। tan x प्लस सी। क्लियर है? अब मैं ये थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि आप हाथ पैर चलाना सीखो, कि भाई दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे बैठे बैठे नहीं होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको फिर प्रॉब्लम करेंगे अगर आप ब्रेन को इस तरह से क्विक नहीं चलाओगे तो। चले आगे। हाँ जी मैम। सेकंड के और पार्ट्स भी देख लो, अगर आपको लगता है कि और किसी पार्ट में डिस्कस करने की जरूरत है तो मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज ठीक है। मैं, अच्छा चलो, हो गया? कुछ पूछना है और सेकंड में? नहीं सेकंड हो गया। क्वेश्चन एक बार मुझे सी करके दिखाओ, एक बार चेक कर ही लेते हैं सी पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर dx। कौन सा वाला? बी लिख पार्ट? दिया मैंने, सी पार्ट, सी। अच्छा। फिर तो इसको बस एक्सपैंड करके फिर ईच वाले को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल नहीं लगेगा अगर आप ऐसा, है ना, जैसे यहाँ पे आपने लगा लिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डी पार्ट में, सी पार्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में गलती से भी नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है एक्स का, ठीक है। हम्म। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 करो। Find y of fx given that dy upon dx equals to this and f of minus 1 is equals to 2। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेट करना है और y निकालना है एग्जैक्टली exactly। ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं होगा। इंटीग्रेट हो गया और इंटीग्रेट हो गया तो क्या आया y की वैल्यू बताओ। इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x। एक्स क्यूब माइनस 4x, और एक कांस्टेंट भी तो रहा होगा ना c। हाँ कांस्टेंट होगा -1। हाँ तो आ गया कांस्टेंट, -1 निकाला है ना आपने यहाँ से पुट करके, हाँ हाँ। तो बस हो गया आंसर, दैट्स ऑल, खत्म। चलो, इसका मतलब है कि फंडामेंटल चीज तो आप सीख गए हो। अब थोड़ी थोड़ी बातें, अब क्वेश्चन 4 पढ़ लेते हैं एक बार। अब आपको केवल डिस्कस कर, मतलब होमवर्क में दूंगा, क्वेश्चन 4 पढ़ो एक बार और आप डिसाइड करो आपको अभी करना है या घर पे करना क्वेश्चन 4। है। इफ एफ डैश टी इक्वल्स टू दिस, फाइंड एफ टी। तो ये मतलब हो जाएगा। एफ डैश टी है, मतलब इंटीग्रेट ही करोगे तभी तो एफ टी मिलेगा। एंड द फंक्शन पासेस थ्रू दिस, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हम्म। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम क्वेश्चन है, dy अपॉन dx दिया हुआ है, y इन टर्म्स ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, आइडेंटिटी कुछ लगाना है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एफ डैश थीटा दिया हुआ है, एफ ऑफ थीटा नहीं, सेम क्वेश्चन है ना ये, 5 6 5 7 3 4 ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। और इन पार्ट 8 आपको एफ डैश एक्स दिया हुआ, आपको एफ एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स दिया हुआ, मतलब सब सेम है, 5 7 8। पर ये एंड 6 में क्या करना है? किसमें? 6।
हाँ, आइडेंटिटी लगा के इंटीग्रेबल फॉर्म में करना है, तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस, चलो इसको कर लेते हैं हम लोग अच्छे से, बहुत छोटा क्वेश्चन है ऐसा कुछ। बाकी ये पूरा एक्सरसाइज आपके होमवर्क में आज दूंगा मैं। सर ये ठीक, एक्सरसाइज कौन सा है? दे रहा हूँ। देखो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन में आइडेंटिटी लगाने कह रहा है, तो अगर आप सीधे यहाँ पे लगाओ साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, अगर आप आइडेंटिटी लगाओ, चलो लगाओ, ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, है ना, ये तो वन बन जाएगा, है ना, ये वन बन जाएगा। और ये देखो फिर से आइडेंटिटी में चला गया ना, ये साइन थीटा की आइडेंटिटी बन जाएगी। आई बात समझ में? हाँ। अब ये देखो, वैसे कोई इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी या फॉर्मूला नहीं है, लेकिन लेकिन आपको याद रखना है आपसे, अगर कहीं भी इस तरह का टर्म दिखता है तो आप उसको इन फ्यूचर ये लिख सकते हो, और अगर ये है तो इन फ्यूचर ऐसा सोच सकते हो, मतलब ये जस्ट आपको एक ट्रिकी चीज याद रखनी है, कल को बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ तो आप ये सोच सकते हो, ऐसा लिखा हुआ तो ये सोच सकते हो। अभी हमारा ये हो गया, तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ, इसको इंटीग्रेट करूं या इसको इंटीग्रेट करूं, बात तो बराबर है तो ना, दोनों बराबर। ये साइन थीटा ओवर टू प्लस कॉस थीटा ओवर टू वन प्लस साइन थीटा कैसे बनता है? अरे ये आइडेंटिटी बन गया, ये तो फेमस आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन नहीं होता। ओ अच्छा अच्छा, ठीक तो है। देखो यहाँ पे जो भी थीटा है सेम ही है ना दोनों हाँ का थीटा, तो ये वन हो गया, हाँ। और ये तो बन ही गया ये मल्टीपल एंगल से। तो अब ये हमारा ज्यादा इजी इंटीग्रल फॉर्म है, तो वन का हो गया थीटा और प्लस साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, आंसर। आई बात अच्छा। समझ में? तो हाँ। आपको ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7A, पूरा आप कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी नहीं होगा उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 7A। ठीक है, फिर उसके बाद